MOSFET, then its types एंड उसका सिंबल. ओके, तो उसमें हम लोग ने शायद से सिंबल किया था. एंड आफ्टर दैट, ओके ओके, ऑल ऑफ यू हैव यू नो दिस डिप्लीशन रीजन. ये हुआ था क्या डिप्लीशन रीजन? Yes, ma'am. एक मिनट, दिस इज विच डायग्राम? 3.14, that is cross sectional view of an n channel MOSFET. Okay, in various three regions. Okay, so first region is what? It is linear region. Okay, MOSFET is operating in linear region, where you can observe that there is a channel present. Okay, channel is present between source and drain. What is the condition? The condition for channel to form is VG should be greater than VD. VG matlab it is nothing but VGS. You can say VGS also. Because VGS means VG minus VS. VS is at zero voltage. matlab VGS is nothing but VG also. तो VG और VGS दोनों सेम है, याद रखो. ओके, सो व्हाट इज द कंडीशन? VGS शुड बी ग्रेटर देन VTH भी बोलते हैं या तो VT भी बोल सकते हो. Okay, so VT is what? It is the threshold voltage of a MOSFET. So when VG is greater than VT, what will happen? This MOSFET will operate in a linear region. Linear region means what? The drain current will vary. Drain current will vary as a linearly with change in VDS. Okay, VDS means VD minus VS. So जैसे VDS change होगा, the drain current will change linearly. What is the second diagram? Okay, in second diagram, that is figure B. Operating region is what? What is the operating region in second figure? That is figure B. Now here we have increased VD. Okay, हम लोगों ने start कैसे किया? VDS very small, positive value है, and all these things are when VGS is greater than VT. तो ये तो पहले condition satisfy होना ही चाहिए. VGS should be greater than VT. Then only inversion layer will be formed. That means channel is present over there, and then the further conduction is possible. तो ये तो main condition है. अभी ये condition रख के what is the second condition? We will go on increasing VD. ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्मॉल वीडी रखा. सो व्हेन इट इज वीडी इज स्मॉल, एट दैट टाइम MOSFET is operating in a linear region. Now what we will do? Now we will go on increasing VD. तो VD हम लोग इंक्रीज करते गए एंड वी हैव रीच्ड द वैल्यू ऑफ VD सेट. तो VD सेट पे पहुंचने के बाद यू कैन सी हियर द चैनल पिंच ऑफ हैज अकर्ड. ओके, चैनल पिंच ऑफ एट ड्रेन. ओके, तो यहाँ पे चैनल का विड्थ यू कैन से इट्स वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो अभी यहाँ पे क्या है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पिंच ऑफ. So that is the second part. So what is the second region? Second region को क्या बोलेंगे हम लोग? What is the second region is called as? Hello? What is the second region is called as? What is the region of operation? At the edge of saturation. Hello, can you hear me? तुम लोग को आवाज आ रहा है क्या? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रहा है. Okay. So is it clear what is linear region and what is edge of saturation? These 2 points are clear? Yeah, ma'am. Okay. अगर किसी को नहीं समझा प्लीज आस्क दैट टाइम. हाँ, फिर बाद में रह जाएगा वो. ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर इज फिगर सी. ओके, नाउ फिगर सी. नाउ व्हाट इज फिगर सी? फिगर सी में व्हाट इज द वोल्टेज? VG इज ग्रेटर देन VT, तो है ही, वो होना ही चाहिए. नाउ VD इज व्हाट? नाउ VD इज ग्रेटर देन VD सेट. ओके, मतलब सैचुरेशन का जो वोल्टेज है उसके भी अभी आगे गया. ओके, सो वी हैव इंक्रीज्ड VD greater than VD sat. So now here what will happen? There is a shift in pinch off voltage. Okay, तो तुम लोग ने सॉरी pinch off point shift हुआ कहाँ पे? Towards left. Now because of this, what is the effect on the channel length? Anybody? What is the effect on channel length? It will decrease because the pinch off is not allowing current to flow. What?
It will decrease because the channel width is not allowing the current to flow. चैनल लेंथ इज, मैंने जस्ट इतना ही पूछा है कि चैनल लेंथ क्या हुआ, व्हाट इज हैपेंड विद द चैनल लेंथ, इज इट रिड्यूस्ड और इज इट इंक्रीज्ड? Reduce. रिड्यूस्ड, ओके। तो ये तुम लोग को दिख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। सी यहाँ पे देखो फिगर बी में इतना चैनल लेंथ है, पूरा यार सोर्स से लेके ड्रेन तक है, राइट। यहाँ पे देखो इन फिगर सी यहाँ से लेके सोर्स से लेके यही तक है। सो चैनल लेंथ यू कैन से, और यू कैन से इफेक्टिव चैनल लेंथ हैज रिड्यूस्ड, ओके। इफेक्टिव चैनल लेंथ हैज रिड्यूस्ड। अभी इसका इफेक्ट करंट पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद ड्रेन करंट, दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी विल सी द इक्वेशंस ऑफ ड्रेन करंट, ओके। तो अभी करंट के साथ क्या होगा वो कंक्लूड मत करो, डोंट डू दैट, वो हम लोग बाद में देखेंगे। व्हाट विल हैपन विद अ ड्रेन करंट व्हेन इफेक्टिव चैनल लेंथ रिड्यूसेस। और इफेक्टिव चैनल लेंथ कब रिड्यूस होता है, व्हेन MOSFET एंटर्स इनटू सैचुरेशन, डीप सैचुरेशन में जब वो जाएगा, then what will happen, there is a reduction in effective channel length because there is a shift in pinch off point. Pinch off point will shift towards source, okay. So the so what is the figure C, what is the operation region, it is beyond saturation, okay. So ये तीन regions याद रखो, पहले तो linear region when VD is small, second is the edge of saturation, edge of saturation मतलब ऐसा समझो कि वो बाउंड्री पे है, लीनियर और सैचुरेशन के बाउंड्री पे है, which is called as when VD is equal to VD sat. And the third region is C, which is operating beyond saturation, okay. Operating beyond मतलब beyond saturation वो जा रहा है कब, when VD is greater than VD sat. So ये तीन regions याद रखो, तीनों conditions याद रखो। करंट का क्या होगा in deep saturation, that we'll see afterwards. Okay, is it clear, is this point clear to all of you? Can we go ahead? हेलो, Yes, ma'am. ओके। फिर उसके बाद ओके, तुम लोगों ने सिंबल पहले ही ड्रॉ किया ना, हाँ। नाउ सी दिस इज जस्ट सी दिस फिगर 3.21, यू कैन सी हियर polarities of various voltages and terminals are shown over here, okay. So पहले हम लोग n channel देखेंगे, n channel MOSFET. So you know that actually there are four terminals, okay. ऊपर वाला जो है वो ड्रेन, नीचे वाला ये है वो सोर्स, लेफ्ट हैंड साइड पे जो रहेगा वो गेट, एंड राइट हैंड साइड पे जो है दिस इज द बॉडी टर्मिनल, ओके। सो दिस इज बॉडी टर्मिनल, ड्रेन, गेट, सोर्स एंड बॉडी। नाउ फॉर n channel MOSFET, what are the polarities of various voltages? So VDS will be drain to source. So drain to source matlab drain will be positive, source is negative when you are saying VDS. VGS means get to source, gate will be positive, source will be negative. So gate पे positive लिखना है, source पे negative लिखना है। See ये बहुत important है, whenever you are solving Hello, any ma'am. MOSFET circuit. Hello, Ma'am, Hello? some people are waiting outside. okay, हाँ एक मिनट, हाँ। और कोई है क्या, अभी बोलो ज्वाइन करने के लिए जल्दी। ओके, ओके, हाँ, n channel MOSFET. So now these polarities of voltages are very much important, are very much important. Why? क्योंकि तुम लोग जब इसको एनालाइज करोगे, when you are going to analyze this particular circuit, सबसे पहला जो काम आएगा वो है तुम लोग को पोलैरिटीज असाइन करना है। VDS, व्हेन यू आर शोइंग VDS, तो पॉजिटिव कहाँ पे लिखना है, नेगेटिव कहाँ पे लिखना है, VGS पे पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, नेगेटिव। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें गलती हो गया देन कंप्लीट जो भी सॉल्यूशन है तुम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। सो बी केयरफुल व्हाइल गिविंग द पोलैरिटीज फॉर वेरियस वोल्टेजेस। सो याद रखो VDS मतलब ड्रेन टू सोर्स, drain is positive, source is negative, VGS gate is positive, source is negative. Now VSB, see VSB matlab source is positive and body is negative, okay, source to body, VSB matlab source to body voltage. So source is positive, body is negative. So in this way the various voltages are given in n channel MOSFET. Similarly they will be assigned in p channel. Abhi p channel mein if you see yahan pe VGS is gate to source, गेट पे पॉजिटिव, सोर्स पे नेगेटिव। VSB सोर्स टू बॉडी, सोर्स पॉजिटिव, बॉडी नेगेटिव। ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन पॉजिटिव, सोर्स नेगेटिव।
ओके, ड्रेन पॉजिटिव, सोर्स नेगेटिव। अभी यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस विच यू कैन सी, जो वोल्टेजेस के नाम है वो सेम है, वीजीएससी है, वीएसबी है, वीडीएस है, बट सोर्स ऊपर गया, ड्रेन नीचे आया। ओके, सो दैट इज द चेंज ओवर हियर। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट चेंज, व्हाट इज द अनदर चेंज? Direction of current. डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। डायरेक्शन अभी करंट का कहाँ से कहाँ रहेगा, ड्रेन टू सोर्स। सी यहाँ पे इट इज आईडी इज शोन लाइक दिस, सो ये ऐसा नहीं है, इसको तुम लोग चेंज करोगे, दिस इज रॉन्ग। आईडी शुड बी फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, सॉरी सोर्स टू ड्रेन, सॉरी सोर्स टू ड्रेन, क्योंकि सोर्स पॉजिटिव है, ड्रेन नेगेटिव है। सो वीएसडी, एक मिनट यहाँ पे क्या लिखा है, वीडीएस, सी दिस शुड बी VDS, VDS मतलब ड्रेन पॉजिटिव, सोर्स नेगेटिव। सो डायरेक्शन, एक मिनट, सोर्स सी यहाँ पे सोर्स पॉजिटिव है, ड्रेन नेगेटिव है, एंड दिस शुड बी VSD, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। ये चेंज यहाँ पे करो, दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर हियर। ओके, इन पी चैनल करंट विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, VSD आएगा, सोर्स टू ड्रेन, and direction is from source to drain and voltage is from VSD, that is source is positive, drain is negative। positive का मतलब है source is at higher potential and negative का मतलब है drain is negative, मतलब drain is at lower potential। तो ये change याद रखो। okay, so this is N channel and P channel MOSFET voltages। now next, all of you write down topic current equation for N channel MOSFET, drain current equation। अब ये इक्वेशंस तुम लोग को लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ये इक्वेशंस बार बार यूज करने वाले। राइट डाउन ड्रेन करंट इक्वेशन फॉर एन चैनल मॉसफेट। ड्रेन करंट इक्वेशन फॉर एन चैनल मॉसफेट। ओके, नाउ अभी ये वाला 3.54 इक्वेशन देखो पहले। Okay, now we are writing equation for n channel MOSFET। now tell me, in n channel MOSFET, if VGS is less than VT, if VGS is less than threshold voltage, what will be the drain current? अगर VGS threshold voltage से कम है, then what will be the drain current? 0, सोचो, हाँ zero। why it is zero? because the channel will not be created। yes right, channel ही नहीं है वहाँ पे। okay, when VGS is less than VT, that means channel is not formed yet, channel is not present, that's why current cannot flow, so current is zero, so ID is zero। write down this first equation, जल्दी से लिखो, write down 3.54, ID is zero for VGS is less than VT। completed? Yes, ma'am. okay, now next equation is ID linear। तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है ID linear। linear का मतलब है when MOSFET is in linear region, what is the drain current equation? okay, MOSFET is in linear region, at that time what is the drain current equation? तो सबसे पहले drain current सबसे पहले MOSFET linear region में अगर चाहिए, then what is the condition of voltages, वो हम लोग पहले लिखेंगे। so सबसे पहले VGS should be greater than equal to VT, ये तो पहला कंडीशन है। ओके, क्योंकि अगर VGS is not greater than VT, then channel is not formed and current will be zero। तो अगर करंट चाहिए तो VGS has to be greater than VT। so this is the first condition। second condition क्या है, VDS मतलब drain to source voltage, VDS should be less than VGS minus VT। okay, VDS should be less than VGS minus VT। when these two conditions are satisfied, then we can say MOSFET is in linear region। and अगर ये एक बार confirm हो गया कि MOSFET is in linear region, we can directly use this particular current equation, drain current equation। so what is the drain current equation in linear region? it is mu n C naught x divided by 2 into W by L into, अभी ये square bracket में है, what is that? 2 into VGS minus VT into VDS minus VDS square। okay, so ये जो इक्वेशन है ये तुम लोग को याद रखना है। okay, this is the drain current equation in a linear region। अभी यहाँ पे what are the various terms? First of all, what you will do, you will just write down this equation and then I will tell you what are these terms। all of you write down this equation fast। 3.55, write down 3.55।
first write down the conditions of voltages. Okay, VGS क्या है, VDS क्या है, वो conditions पहले लिखो and then write down drain current equation. Completed? Once completed, let me know. Completed equation 3.55. Yes, ma'am. ओके ठीक है, अभी तुम लोगों ने इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन याद रखना है, ट्राई टू रिमेम्बर दिस इक्वेशन. ओके नाउ अभी इसमें पैरामीटर्स क्या है, व्हाट आर द थिंग. ओके सबसे पहले राइट डाउन म्यू एन. राइट डाउन म्यू एन. व्हाट इज म्यू एन, क्या हो सकता है, गेस, एनी गेसेस. म्यू एन okay, write down mu n is mobility of Ma'am, electron. diffusivity of electrons. No, mu n is the mobility of electron. Mobility. Write down mu n is mobility of electron. Next is C naught x or COX. अभी ये क्या हो सकता है, COX. Capacitance of oxide Capacitance. Yes, right. Okay, write down COX is oxide layer capacitance per unit area. COX is oxide layer capacitance. Next is W. What is W by L? width of channel, ratio of width to length. Yes, right. लिखो W by L is W, or you can say W by L लिखो, फिर W के आगे लिखो width of a channel, L is the length of a channel. ठीक है, so these are the things. इसके साथ बाकी तो ये जो है वो voltages है. These voltages you know. What is VGS? It is get to source voltage. What is VDS? It is drain to source voltage. And what is VT? Threshold voltage. Write down VT is a threshold voltage. ठीक है, so this was the equation of drain current in a linear region. So what is the equation? Mu n C naught x by 2 into W by L, 2 into VGS minus VT into VDS minus VDS square. Next, third equation 3.56. Now what is this equation? This is the equation for drain current when MOSFET is operating in a saturation region. Okay, अभी वो saturation में अगर है, then what will be the current equation? तो सबसे पहले तुम लोग को condition लिखना है. So just tell me what is the difference between the condition? Just see equation. हाँ क्या It will be VSD instead of VDS. ओके अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाँ सी फॉर लीनियर रीजन कंडीशन क्या था, VGS शुड बी ग्रेटर देन VT, ओके, एंड VDS शुड बी लेस देन VGS माइनस VT. नाउ जस्ट सी 3.56. नाउ सी अभी हम लोग सिर्फ एन चैनल पे ही है, ओके, वी आर नॉट राइटिंग फॉर पी चैनल. तो हम लोग पहले एन चैनल का ही कर रहे हैं. एन चैनल का लीनियर हो गया, अभी एन चैनल का ही सैचुरेशन रीजन का इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं. सो यहाँ पे व्हाट इज द बेसिक कंडीशन, MOSFET ऑन होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, VGS should be greater than VT. So that condition will be same for both the regions, linear as well as saturation. So you can see here, linear में भी VGS is greater than VT and saturation में भी VGS is greater than or equal to VT. So this is the basic condition. Then only you can say the MOSFET is on. अगर यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो MOSFET ऑफ है. That means the first, it will go to the first equation. Okay, एक बार ऑन है ये पता चल गया, then the second thing is you need to confirm whether it is in linear or saturation region. तो उसके लिए you will check the second condition. मतलब तुम लोग VDS का वैल्यू चेक करोगे, तो VDS का वैल्यू तुम लोग फाइंड आउट करोगे एंड VGS माइनस VT भी फाइंड आउट करोगे, एंड देन यू विल कंपेयर
VDS with VGS minus VT. If VDS is less than VGS minus VT, then what is the region of operation? Linear. Linear. And if VDS is greater than VGS minus VT, then what is the linear of what is the operation region? Saturation. Saturation. Okay. तो ये समझा तुम लोग को अभी कंडीशन कैसे चेक करना, इज इट क्लियर? ये हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे तभी बताऊंगी मैं तुम लोग को. अभी क्लियर हुआ? Yeah, ma'am. ठीक है. अभी क्या करो, सो ये कंडीशन में सिर्फ इतना ही चेंज है कि ऊपर लीनियर में क्या था, VDS इज लेस देन VGS माइनस VT, whereas saturation में VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT. ये याद रखो. That means when VDS is greater than VGS minus, and this VGS minus VT, write down, VGS minus VT is called as overdrive voltage. कहीं पे तो लिखो, VGS minus VT is called as overdrive voltage. Overdrive voltage, and it is also denoted by VGST. VGST. So VGST अगर कहीं पे दिखा मतलब it is VGS minus VT. It is called as overdrive voltage. Now write down equation of saturation current. Okay, drain current in a saturation region, which is ID sat. अभी ID sat का equation देखो क्या है. So what is the equation? Mu n C naught x by 2 into W by L into VGS minus VT the whole square into 1 plus lambda VDS. Write down this complete equation. कंडीशन भी लिखो, वोल्टेजेस का, VGS एंड VDS का कंडीशन भी लिखो. और ये कंडीशन तुम लोग को अभी याद रखना है. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मॉसफेट ये रीजन में है, ये कंडीशन होगा तो ये रीजन में है, एंड उसका फिर ड्रेन करंट इक्वेशन क्या आएगा. ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ इन इक्वेशन 3.56 देयर इज वन न्यू टर्म. बाकी सब टर्म्स तुम लोग को पता है. ये इक्वेशन में सिर्फ एक न्यू टर्म है. व्हाट इज दैट? आईडी का इक्वेशन देखो, उसमें कोई न्यू टर्म है क्या जो पता नहीं है? Lambda. यस, लैम्बडा. राइट डाउन लैम्बडा. ओके, नाउ व्हाट इज लैम्बडा? किसको पता है क्या? शायद से मैंने जब ईडीसी पढ़ाया था तब ये पता नहीं. तुम लोग को ये लैम्बडा. ओके, डू यू नो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन? Ma'am, is it DC voltage gain? डीसी वोल्टेज, नो नो, इट इज नॉट अ डीसी वोल्टेज गेन. ये डीसी लैम्बडा फिर वो तुम लोग बीजेटी से कंपेयर कर रहे हो. ओके, वहां पे अल्फा बीटा नहीं, वहां पे लैम्बडा नहीं होता, वहां पे होता है अल्फा बीटा गामा. ओके, अल्फा बीटा गामा होता है वहां पे, एंड दैट अल्फा मींस करंट गेन, डीसी करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. बीटा इज डीसी करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एंड गामा इज द डीसी करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. तो वो बीजेटी का था, तो वहां पे भी गामा था. इट वाज नॉट लैम्बडा. सो लैम्बडा कुछ याद नहीं है तुम लोग को शायद से. ओके, तो एटलीस्ट तुम लोग को चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पता है क्या? चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन No, नहीं ma'am. पता है ना? नहीं पता है. ओके, ठीक है, जस्ट राइट डाउन. अभी अभी इतना ही लिखो. राइट डाउन लैम्बडा इज इक्वल टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर. लैम्बडा इज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर. अभी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन क्या होता है एक्चुअली? मैंने तुम लोगों को शायद से बताया रहेगा, बट अभी तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है. सो व्हाट वी विल डू व्हेन वी विल स्टडी द सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स, at that time I will revise this thing, what is the channel length modulation and what is the formula for lambda. Okay, तो ये हम लोग उस टाइम पे रिवाइज करेंगे. सो अभी ये इक्वेशन लिखो. सो कंप्लीटेड विद इक्वेशन 3.56 हो गया. Yes, ma'am, does. ओके, ठीक है. अभी वन क्वेश्चन. सपोज इफ लैम्बडा, इफ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इज 0, ओके, मतलब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इज नॉट देयर, और इफ आई वांट टू नेग्लेक्ट द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, then what will be the effect on this equation? Then what will be the ID equation? चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन नहीं है मतलब लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा? It will only be till VGS minus VT. यस यस यस. ये कहीं पे तो नोट डाउन करो, प्लीज नोट इट डाउन. इफ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इज नेग्लेक्टेड, दैट मीन्स लैम्बडा इज 0. If channel length modulation is neglected, then lambda is 0.
सो आईडी का इक्वेशन क्या आएगा फिर? आईडी सेट इज इक्वल टू म्यू एन सी नॉट एक्स बाय 2 इंटू डब्ल्यू बाय एल इंटू वीजीएस माइनस वीटी द होल स्क्वायर. दैट्स इट. ओके, तो ये एक पॉइंट नोट डाउन करो. Completed? Okay, completed with 3.56. Write down current voltage equations of the P channel MOSFET. Okay, अभी हम लोगों ने N channel किया. Now next write down P channel MOSFET. Current voltage equations of the P channel MOSFET. Okay, now what is the difference which you can observe? Now compare. तुम लोग के पास already N channel के equations है. Compare those equations with P channel. What is the change? Now check equation 3.57. ओके, अभी यहाँ पे देखो एन चैनल के लिए इक्वेशन क्या था? सॉरी, एन चैनल के लिए एक मिनट. सी 3.54 में दिस वाज रॉन्ग. ओके, सॉरी, VGS इज लेस देन VT. यस, VGS इज लेस देन VT, आईडी इज 0. सो अभी P चैनल में का क्या होगा? उल्टा. If VGS is greater than VT, then ID is okay. If VGS is greater than VT, then ID is 0. Write down this equation 3.57. If VGS is greater than VT, then ID is 0. So ये सेम चीज हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कैन आई राइट VSG लेस देन VT? इफ VSG is less than VT, ID is 0. Can I write in this way? If VSG less than VT, ID is 0. Is it okay? ये भी चलेगा? हेलो, आर यू देयर? Yes, man. तुम लोगों को पॉइंट समझा क्या? सी, अभी तुम लोग यहाँ पे है. सी, यहाँ पे एन चैनल में क्या था? अगर इफ VGS इज लेस देन VT तो करंट 0 है. P चैनल में क्या होगा? इफ VGS इज ग्रेटर देन VT, इफ VGS इज ग्रेटर देन VT, देन करंट विल बी 0. तो ये जो है VGS इज ग्रेटर देन VT, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? VSG इज लेस देन VT, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोलरिटी VGS था, अभी VSG किया, मतलब इट विल बी VS माइनस VG. सो यहाँ पे भी ये जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा. सो कैन आई राइट ID is 0 for VSG is less than VT. Is it okay? ये पॉइंट समझ रहे हैं क्या तुम लोग को? हेलो, यस मैम, समझा. ओके. तो ये भी लिखो साइड में, ये भी लिखो कि एक तो VGS ग्रेटर देन VT और VSG लेस देन VT. VSG लेस देन VT ऐसे लिखो. सो दैट इज 3.57. नेक्स्ट, आईडी लीनियर. अभी आईडी लीनियर का अगर तुमने करंट इक्वेशन देखा तो करंट इक्वेशन इज सेम. जस्ट चेक, करंट इक्वेशन तो पूरा सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. ओके, सो व्हाट इज द चेंज कंडीशन में है. ओके, सो अभी यहाँ पे कंडीशन कैसे चेंज होगा? अभी देखो VGS इज ग्रेटर देन VT तो करंट 0 है, मतलब करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? VGS शुड बी लेस देन VT, लेस देन और इक्वल टू VT. सो ये राइट डाउन दिस कंडीशन. So VGS is less than equal to VT, and what will be the VDS condition? मतलब जो भी 3.55 में है ना उसका उल्टा होगा, मतलब ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. So यहाँ पे VGS greater than VT था, यहाँ पे VGS less than equal to VT है. यहाँ पे VDS less than VGS minus VT था, यहाँ पे VDS greater than VGS minus VT है. So this will be the change. So that is 3.58. Is it okay? समझ रहे हैं? या मैम.
ओके, नेक्स्ट राइट डाउन 3.59. सेम, अभी 3.56 में जो था उसका उल्टा यहाँ पे आएगा. VGS less than VT, less than equal to VT, and VDS less than equal to VGS minus VT. Then PMOS will go in saturation region. PMOS will go in saturation region. Not changing over there. ड्रेन करंट का इक्वेशन सेम रहेगा, सिर्फ जिसका वो अभी चेंज हो गया. ओके, अभी यहाँ पे आईडी लीनियर एंड आईडी सैचुरेशन हम लोगों ने इक्वेशंस लिखा है. ओके, इन म्यूएन पी और म्यूएन, सपोज हम लोगों ने ये लिया. ओके, म्यूएन सी नॉट एक्स डब्ल्यू. तो ये जो टर्म है म्यूएन सी नॉट एक्स डब्ल्यू बाय एल, इसको दिस टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय के एन, वेयर के एन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर. ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस. Right now, down this K here, Kn is equal to C naught x W by L. N is equal to C naught x W by L. Right, N to mu n, where Kn is equal to process transconductance parameter. Process Ma'am, can you repeat? ये इक्वेशन दिख रहा है तुम लोग को. Kn is equal to mu n C naught x. Yes, ma'am. ओके, ये वाला इक्वेशन लिखो पहले. Kn is equal to mu n into C naught x into W by L. जैसे Kn Kp भी आएगा. Kp मतलब फॉर PMOS. PMOS के लिए क्या आएगा? K mu P into C और Cl. और ये जो Kn है या ये Kp है उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस parameter. Kn and Kp process transconductance parameter. Completed? Hello? Yes, ma'am. Okay. Mu p क्या होगा? What is mu p over here? Mu p what? Mobility of holes. Yes, right. Okay. ये नहीं लिखा रहेगा तो प्लीज राइट इट डाउन. Mu p is mobility of holes. अगर mu n mobility of electrons है, which is for n channel, then mu p will be mobility of holes for p channel. And what is Kn? What is Kn? Process transconductance parameter. पैरामीटर. ओके, अभी आगे जाके जब तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को ये जो है ना Kn, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं. Kn इज इक्वल टू Kn डैश इंटू W बाय L. ओके, ऐसे भी दिखेगा तुम लोग आगे जाके. Kn इज इक्वल टू व्हाट? Kn डैश इंटू W बाय L. सो व्हाट इज Kn डैश एट दैट टाइम? राइट डाउन. हाँ, यस, तो वो लिखो प्लीज, मेंशन दिस, क्योंकि आगे जाके आने वाला है. Write down Kn is equal to Kn dash into W by L, where Kn dash is mu n C naught x. Kn dash is mu n C naught x. Similarly, Kp का भी आएगा. Okay, Kp is equal to Kp dash into W by L. Okay, now ये जो Kn हम लोगों ने लिखा, Kn is equal to Kn dash into W by L. तो Kn dash जो है, that is mu n C naught x. Okay, actually this is the process transconductance. Now why this is called as a process transconductance? Because these parameters, that is mu n and C naught x, these parameters are coming from the process. Okay, while designing any VLSI circuit, you cannot change these two values. Okay, ये values तुम लोग के हाथ में नहीं है, mu n and C naught x. तुम लोग क्या change कर सकते? Even length is also लेंथ भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते. तो हम लोग के हाथ में क्या है? ओनली W. ओके, बट वी कैन चेंज W. दैट मीन्स लेंथ मतलब मिनिमम लेंथ होगा ना, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोसेस.
प्रोसेस मतलब जहां पे तुम लोग चिप को फैब्रिकेट करने वाले हो, सो दैट फैक्ट्री इज कॉल्ड एज एक्चुअली फाउंड्री। ओके, तो वहां पे ये जो म्यूएन है, ये सी नॉट एक्स है, एंड देन ये एल है, वो वहां पे फिक्स होता है। तो तुम लोग व्हेन यू आर डिजाइनिंग, यू आर एक्चुअली सिलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। You will tell the value of W for particular MOSFET. Okay, so why this mu n and C naught x called as a process transconductance parameter? Because these two terms are coming from the values. Is it clear? This point mention करके रखो, note it down. This is very can be, you cannot change this point. Asked in Viva में ये पूछेंगे, what is, बोलोगे it is process transconductance parameter. So next question will be, can we change those values? Can we change COX या mu n का वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं क्या एज ए डिजाइनर? नो, वी कैनॉट चेंज दीज टू वैल्यूज, वैल्यूज आर प्रोसेस। तो हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं? वी कैन चेंज ओनली W by L रेशियो। हाउ? बाय चेंजिंग विड्थ coming from the process. Is it okay? Is this point clear, all of you? Yes, ma'am. ओके, तो ये नोट डाउन करो, तुम लोग बाद में भूल जाओगे फिर पूछ। एंड प्लीज सी, हमेशा ये होता है एंड ऑफ कोर्स यू आर आस्किंग मैम गिव सम क्वेश्चन, तो मैं तुम लोग को उस टाइम पे भी मैं वही बोलती हूँ कि तुम लोग जब लेक्चर होता है उस टाइम पे इन ईच एंड एवरी लेक्चर आई टेल यू दिस इज द वाइवा क्वेश्चन, तो प्लीज नोट इट डाउन। तुम लोग के नोटबुक में वहां पे नोट डाउन करो, ये वाइवा के लिए पूछेंगे। ओके, सो अगर तुम लोग ये रोज करते गए ना, देयर विल बी एनी नीड ऑफ सेपरेट क्वेश्चन बैंक फॉर द वाइवा, क्योंकि हर टाइम पे जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगी वहां पे ये बताऊंगी कि ये क्वेश्चन वाइवा में पूछेंगे। इज इट ओके? यस मैम, ओके। हाँ, Yes, तो तुम ma'am. लोग ये तो तुम लोग ये नोट दो। अभी आज इतना टॉपिक पढ़ा है, इसमें क्या क्या पूछेंगे वाइवा के लिए? व्हाट आर द रीजंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट? ओके, व्हाट इज डीप सैचुरेशन, बियॉन्ड सैचुरेशन रीजन क्या होता है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वोल्टेजेस फॉर दैट? ओके, व्हाट इज द ड्रेन करंट इक्वेशन इन लीनियर रीजन? व्हाट इज द ड्रेन करंट इक्वेशन फॉर सैचुरेशन रीजन? व्हेन द मॉसफेट विल गो इन सैचुरेशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वोल्टेजेस? हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन मॉसफेट? समझ रहे हैं तुम लोग को? तो ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे ये टॉपिक में से, आज जो टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। ओके, सो ये अगेन फिर के एन, व्हाट इज के एन, व्हाट इज म्यू एन? म्यू एन क्या होता है? व्हाट इज द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द मॉसफेट? व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो? व्हाट इज द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ मॉसफेट? W by L. W by L। हाँ, तो ये भी नोट डाउन करो। सी, ये अभी सबको ये पता होना चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो मतलब W by L। ओके, राइट डाउन, W by L रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एज एस्पेक्ट रेशियो। Okay, completed. Now write down next module. Sorry, not module. Next topic. Write down MOSFET fabrication. MOSFET fabrication. सिर्फ इतना ही लिखो। Okay, can you see the screen? Yes, ma'am. Okay, can you see this figure 2.4 लास्ट वाला ये दिख रहा है, प्रोसेस फ्लो? Yes, ma'am. ओके, सो ये फिगर में तुम लोग को क्या दिख रहा है? ओके, कैन यू आइडेंटिफाई विच डिवाइस इज दिस? चेक करो ठीक से, विच डिवाइस इज दिस? क्या है ये? क्या फिगर में क्या दिख रहा है तुम लोग को? कौन सा डिवाइस है ये? इज इट Substrate. बीजेटी? इज हाँ, क्या है? N-channel MOSFET. एन चैनल मॉसफेट। यस, यहाँ पे नीचे लिखा भी है। ओके, सो एन टाइप और यू कैन से एन चैनल मॉसफेट। सो यहाँ पे एक्चुअली ये जो है ये है फैब्रिकेटेड एन चैनल मॉसफेट। इसका मतलब ये है, अगर तुम लोग यू नो द चिप, ओके, चिप में मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स आर देयर, वीएलएसआई तुम लोग को पता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारे बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर देयर। व्हेन वी आर सेइंग ट्रांजिस्टर, मैक्सिमम टाइम इट विल बी मॉसफेट्स। ओके, तो मॉसफेट्स में देयर कैन बी एन चैनल और पी चैनल। तो वो एक्चुअली मॉसफेट अंदर कैसे फैब्रिकेट होता है, दिस प्रोसेस नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को फाइनल मॉसफेट कैसे दिखता है, ओके, फैब्रिकेटेड मॉसफेट, हाउ डज इट लुक, सो वो हम लोग पहले देखेंगे, एंड देन वी विल सी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि एग्जैक्टली
यहाँ तक पहुंचने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स विच आर परफॉर्म्ड, what are the various process which are performed, and then finally we will have the fabricated n channel MOSFET. तो यहाँ पे सी सबसे पहले what is this SI, ये वाला पार्ट क्या है, this is a substrate. Okay, so this is a silicon substrate. Now simple question, if I want to make n channel device, which substrate should I take? Is it P type or N type? P type. P type, type. right, right. अभी ये चीजें जो तुम लोगों को पता ही होनी चाहिए, अगर ये नहीं आया मतलब फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, सो दिस अगेन दिस इज द वाइवा क्वेश्चन. एन चैनल मॉसफेट बनाना है तो कौन सा सबस्ट्रेट लोगे? सो पी सबस्ट्रेट. पी सबस्ट्रेट में ही एन चैनल मॉसफेट बनेगा. एन सबस्ट्रेट में एन चैनल मॉसफेट नहीं बनेगा, याद रखो. सो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट टेक एसआई सबस्ट्रेट, मतलब सिलिकॉन का सबस्ट्रेट बट पी सबस्ट्रेट. ओके, पी सबस्ट्रेट आई विल टेक. पी सबस्ट्रेट में तुम लोग को फिर क्या करना है, यू नीड टू हैव डिफ्यूजन्स. डिफ्यूजन्स मतलब तुम लोग को ड्रेन एंड सोर्स रीजन बनाने हैं. कौन से? एन प्लस के. एन प्लस के लिए यू विल डोप दोस थिंग्स विथ विच इम्प्योरिटी? एन प्लस रीजन चाहिए तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. ओके, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से हम लोग इसको डोप करेंगे. तो डोप करेंगे एंड देन वी विल गेट दीज टू रीजन्स. तो ये दो रीजन्स कैसे करते हैं वो अभी हम लोग आगे देखेंगे. सो दीज टू रीजन्स आर कॉल्ड एज सोर्स एंड ड्रेन. These are diffusion regions. इसके ऊपर तुम लोग को यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, दिस इज द गेट, दिस इज दी यू कैन से थिन ऑक्साइड लेयर. एक पहले तो सबसे पहले थिन ऑक्साइड होता है, उसके बाद ऊपर होता है थिक ऑक्साइड, एंड थिक ऑक्साइड के बाद ऊपर होगा पॉलीसिलिकॉन विच इज अ गेट. ओके, सो कैन यू सी हियर 3 लेयर्स? कैन यू सी द कर्सर? कर्सर दिख रहा है क्या तुम लोग को? ओके, तो ये सबसे नीचे वाला, हाँ सबसे नीचे वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज थिन ऑक्साइड लेयर. उसके ऊपर जो है वो थिक ऑक्साइड लेयर, एंड उसके ऊपर जो दिख रहा है ना ये वाला, दैट इज द पॉलीसिलिकॉन गेट, और यू कैन से इट इज अ गेट टर्मिनल तुम लोग का. नेक्स्ट, फिर यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर है, कंप्लीट ब्लैक कलर, दिस इज यू कैन से मेटल कॉन्टैक्ट. ओके, ये मेटल लेयर है, इट इज कॉल्ड एज अ मेटल लेयर और मेटल कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट, वाई कॉन्टैक्ट्स आर रिक्वायर्ड? क्योंकि ये जो मॉसफेट है, ऑब्वियसली आई नीड टू कनेक्ट दिस मॉसफेट इन माय सर्किट. तो सर्किट में ये मॉसफेट का कनेक्शन किसी दूसरे से होगा, तो वो कनेक्शन करने के लिए वी नीड अ मेटल लेयर. सो दैट मेटल लेयर इज शोन विद दिस ब्लैक कलर. ये ब्लैक जो दिख रहा है, सो यू कैन से दीज आर कॉन्टैक्ट्स टेकन आउट फ्रॉम द डिफ्यूजन. तो यहाँ से जो लिया है वो ड्रेन का कॉन्टैक्ट है, यहाँ से जो लिया है वो सोर्स का मेटल कॉन्टैक्ट है. ओके, सो दिस फॉर्म्स यूर कंप्लीट एनमॉस ट्रांजिस्टर. तो एनमॉस ट्रांजिस्टर में क्या क्या होता है? सबसे पहले पी सबस्ट्रेट होता है, उसके बाद 2 एन प्लस डिफ्यूजन रीजन्स रहेंगे. उसमें से एक जो रहेगा दैट विल बी सोर्स, अनदर विल बी ड्रेन. उसमें से हम लोग मेटल कॉन्टैक्ट्स लेंगे टू कनेक्ट दैट मॉसफेट इन अदर सर्किट. एंड देन एक गेट रहेगा. सो गेट विल बी ऑन ऑक्साइड लेयर. उसमें 2 ऑक्साइड लेयर होता है, एक होता है थिनॉक्स एंड एक होता है थिकॉक्स. ओके, तो वो दोनों के ऊपर गेट रहेगा. गेट इज मेड अप ऑफ पॉलीसिलिकॉन. पॉलीसिलिकॉन मीन्स पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन. ठीक है, सो इन दिस वे यू विल हैव द एन मॉस का कंस्ट्रक्शन. अभी ये अपने को फैब्रिकेट करना है. फैब्रिकेट करना है मतलब बनाना है, तो कैसे करेंगे? सो यहाँ पे अभी स्टेप्स है. सो ओके, सो दिस जो प्रोसेस है वो चालू होता है ए फिगर से. ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी फिगर ए. सो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग क्या लोगे? यू विल टेक अ बेयर सिलिकॉन पी सबस्ट्रेट. ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है पी, बट इट इज अंडरस्टूड क्योंकि एन टाइप बनाना है मतलब पी सबस्ट्रेट होगा. सो यहाँ पे पी सबस्ट्रेट हम लोग सबसे पहले लेंगे. देन व्हाट वी विल डू, वी विल डू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ये जो सरफेस है इसका सिलिकॉन का, वी विल डू द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट सरफेस. सो ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, ये जो टॉप का सिलिकॉन है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड देयर विल बी अ लेयर फॉर्म्ड. कौन सा लेयर फॉर्म होगा? SiO2, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ तो SiO2 का लेयर फॉर्म होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑक्साइड लेयर विच इज फिगर बी. अभी फिगर सी में क्या किया है, अभी वो ऑक्साइड लेयर मुझे कंप्लीट नहीं चाहिए क्योंकि इन मिड वे आई वांट टू मेक अ गेट को बनाना है मुझे. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये बीच में क्या आने वाला है, गेट भी आएगा, एंड गेट के साथ साथ देयर विल बी 2 डिफ्यूजन रीजन्स. ओके,
हम लोग ने फाइनल स्ट्रक्चर देखा है, सो यू नो दैट यहाँ पे गेट आने वाला है, पॉलीक्रिस्टलाइन गेट, एंड गेट के दो साइड पे देयर विल बी 2 डिफ्यूजन रीजन. तो व्हाट आई हैव टू डू, आई नीड टू इच आउट दिस मिडल पार्ट. ओके, तो ये तुम लोग ने पीसीबी बनाया था ना फर्स्ट ईयर में इन हार्डवेयर वर्कशॉप. Yes, ma'am. ओके, सो यू नो दैट जो तुम लोग ने पहले पीसीबी कैसे बनाया था, तुम लोगों ने कुछ एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था, फिर तुम लोगों ने वो पेंट किया था, याद है कुछ? Yes, ma'am. तो Yeah. पेंट करने के बाद तुम लोगों ने क्या किया था, उसको एक सॉल्यूशन में डाला था. पेरिक्लोराइड था शायद हाँ से. हाँ, तो वो क्यों किया था वो सब पता है? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. तुम लोगों ने किया तो हाँ, वो क्यों किया? कॉपर ट्रेस बनाने के लिए था ना वो. हाँ हाँ, मतलब वो वायर सिर्फ रहेगा, मतलब जो तुम लोग को जहाँ पे पाथ चाहिए ओनली दैट कॉपर शुड रिमेन, बाकी सब कॉपर जो है वो रिमूव होना चाहिए. इसके लिए तुम लोगों ने क्या किया, जहाँ पे पाथ है, जहाँ पे ट्रैक है, वहां पे तुम लोगों ने ब्लैक पेंट किया. सो व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक पेंट, दैट फेरिक क्लोराइड विल नॉट रिएक्ट विथ दैट पर्टिकुलर कॉपर. ओके, जो ब्लैक पेंट के नीचे कॉपर है उससे वो रिएक्ट नहीं करेगा, राइट? तो फेरिक क्लोराइड जो बाकी का कॉपर है उससे ही रिएक्ट करेगा, एंड दैट कॉपर विल रिमूव, दैट विल बी रिमूव. सिर्फ फिर फाइनली जब तुम लोग उसको सुखाओगे तो क्या होगा, जो इसके नीचे वाला जो कॉपर है दैट विल रिमेन एज इट इज. सो मतलब वो जो पाथ है वो तुम लोग को मिला. सो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज इचिंग, राइट? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ये तुम लोग को पता है. तो थोड़ा बहुत वैसे ही सिमिलर टाइप में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. अभी यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है मिडल, इसको हम लोग इच आउट करेंगे. अभी यहाँ पे जो इचिंग के लिए प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फोटोलिथोग्राफी. ओके, एंड वी विल स्टडी दिस प्रोसेस इन डिटेल इन अ नेक्स्ट लेक्चर. फोटोलिथोग्राफी एग्जैक्टली क्या होता है. ओके, सो अभी Okay, 21 हो गया, सो आई विल स्टॉप इट हियर. Okay, so we will study the next steps in next lecture tomorrow, and at the same time I will explain you what is the photolithography. Till that time what you can do, you just go on YouTube, type photolithography process in MOSFET fabrication. तुम लोग को वीडियोस मिलेंगे, थोड़ा वीडियो देखो तो एक आइडिया आ जाएगा. इज इट ओके? Okay. हाँ चलो. So one sec, I'm taking the attendance, don't leave. Now see, there are total 34 students now. तो ये 34 भी नहीं है, 33, क्योंकि 2 तो मेरा ही काउंट है. So 33 स्टूडेंट्स का ही अटेंडेंस लगेगा. ओके, कीप दिस इन माइंड. तो जो बाकी तुम लोग के जो फ्रेंड्स है जिनको लगता रहेगा कि बीच में आके चले जाएंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं होगा. ओके, एट द जब जिस मोमेंट पे आई विल टेक द अटेंडेंस, नाउ सी यू कैन सी यू कैन सी द स्क्रीन. अभी अटेंडेंस यहाँ पे जनरेट हुआ है. See, only 33 students will be there. Okay, so I have taken the attendance. You can leave. We'll meet tomorrow. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am.